Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to all. Today in the Sunday's concept series lecture, we'll be talking about the one of the important concepts where you always get a question in the competitive exams. Okay. So, today's topic of discussion in the concept series will be hybridization. So basically what we'll do in the hybridization. As you know, it's a very concise series. 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर we'll try to explain a concept so that we can apply that, क्योंकि इसमें question आता है. So I will do one thing here. I will write down 3 atoms: carbon, then nitrogen, so nitrogen, and I will write down oxygen here. तो आप सोच रहे होगे कि what I am doing here, I am writing carbon, nitrogen और oxygen. ये 3 elements हैं जो usually आप organic and inorganic chemistry में इनका तो पढ़ते ही हो. You will always see involvement of these atoms and elements. Oxygen atomic number 8, nitrogen 7, carbon 6. अब इसे क्या कर लेते हैं, इससे हम hydrides इनके बनाते हैं. Means their compounds with hydrogen. ऑक्सीजन का कंपाउंड जो हाइड्रोजन के साथ मोस्ट कॉमन है, दैट इज वाटर, H2O. इट्स अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके हाइड्रोजन 2 आपने ऑक्सीजन के साथ डाल दी. नाइट्रोजन के साथ जो मोस्ट कॉमन इसका हाइड्राइड है, दैट इज अमोनिया. ठीक है. और जो कार्बन का हाइड्राइड है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, that is methane. 3 हाइड्राइड मैंने बना लिए इनकी. ठीक है. अब बिफोर वील टॉक अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन, इनको हम कैसे निकाले, एक जस्ट लेट्स मार्क देम. दिस इज योर मीथेन, अमोनिया, एंड दिस इज वाटर. ठीक है. अब मैं क्या कर लेता हूं, वाटर से मैं 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता हूं. वी नो वाटर हैज अ लोन पेयर, सो इफ आई गिव H पॉजिटिव टू वाटर, इट हैज अ लोन पेयर हियर. इसमें बेसिकली 2 लोन पेयर्स होती हैं वाटर ऑक्सीजन में. सो इट कैन डोनेट दैट लोन पेयर टू एक्सेप्ट दिस H प्लस. इसका मतलब वाटर विल एक्ट एज H पॉजिटिव एक्सेप्टर. सो or water donates the lone pair, so water basically acts as Lewis base. ठीक है. So it will form H3O plus. दूसरा concept which I want to express here, that is let the water will give H plus. ठीक है. H plus इसे निकल रहा है. Let's say with the help of arrow H plus gets add up, यहाँ से H plus निकल रहा है. So we'll get OH negative, one of the common chemical species in the chemistry, that's the hydroxide ion. It's a base. ठीक है. 2 मैंने बना लिए. Same is the case अमोनिया के केस में. What I will do, I will take accept a proton, because अमोनिया के केस में भी we have a lone pair on the nitrogen. वाटर के केस में we have 2 lone pairs. So एरो की हेल्प से कि लोन पेयर, यानी आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ एरो कि अमोनिया टेक्स H प्लस. दैट मींस अमोनिया विल एक्ट एज अ लेविस बेस. जिस तरह वाटर विल आल्सो एक्ट एज अ लेविस बेस, अमोनिया आल्सो. सो वहां के क्या बनेगा, NH4 प्लस. दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन. जिस तरह से दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन. अच्छा, दूसरा केस, let the ammonia to release H plus. ठीक है. यानी वहां से H plus निकल गया. Any species that gives H plus as per the Bronsted concept, that is called as the acid. So ammonia can act as an acid, even though usually it is a base, Lewis base, because of the lone pair donation tendency. But if it gives H plus, it forms an interesting chemical species and one of the strongest bases in the chemistry, that's the amide base. ठीक है. NH2 negative. So it acts as, in this, by this process,
ammonia acts as Bronsted acid. By this way, ammonia acts as the Lewis base. Likely, water in this process acts as Lewis base, but by this process to form hydroxide acts as Bronsted acid because it gives H plus. Bronsted concept में H plus donor is an acid, H plus acceptor is a base. Lewis concept में या Lewis concept में electron pair donor is a base and electron pair acceptor is an acid. ठीक है, अब आते हैं इस पे. मीथेन मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है. So what I will do, I will make something like this. Let us do one thing. Let us say it gives H plus. Even though generally ऐसा होता नहीं है, लेकिन during the transformation organic reactions में ऐसा होता है. मेरा जो aim है that is to predict the hybridization. So I'm talking in that sense. If it gives H plus, it forms CH3 negative. Remember this. ठीक है? And second, if it gives H minus, तो यहां मैं दोनों केसेस में दिखा रहा हूं H माइनस आपका पेरेंट मीथेन H माइनस देता है, यहां से भी H माइनस. तो एरो जो है, एरो आपको आइडिया देगा कि यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि दे रहा है. सो इफ इट गिव्स H माइनस देन विल फॉर्म CH3 प्लस. तो यहां से भी हमें 2 स्पीशी बन गए. अगर आपको याद हो इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस स्पीशी, दिस वन, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड्स है. इट्स कॉल्ड so that means this species is called as carbanion, carbon anion, carbanion. So कार्बोकेटाइन होता है, इसलिए कार्बोएनाइन या कार्बेनाइन. इसी तरीके ये जो स्पीशीज CH3 प्लस, कार्बन पे प्लस चार्ज है, 3 बॉन्ड्स है, इट्स कॉल्ड कार्बोकेटाइन. सो ये बन गया आपको कार्बोकेटाइन. इसको हमने बड़े डेप्थ में पढ़ा हुआ इन द फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वी हैव अपलोडेड अ कंप्लीट सीरीज ऑन दैट, पर्टिकुलरली फॉर द नीट एग्जाम्स, तो आप इसको देख सकते हैं. सो तो दिस इज योर अमोनियम आयन. So this is your ammonium ion, ammonium. This is your amide base. This is the hydronium ion, and this one is your hydroxyl ion या hydroxide ion. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन है, विल टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. इनका हाइब्रिडेशन कैसे निकाले? सिंपल, आपको मैं एक फॉर्मूला बोल लेता हूं. विल अप्लाई दैट फॉर्मूला, दैट इज सिंपली VMCA/2. इस फॉर्मूला की हेल्प से यू विल बी इन अ पोजीशन टू ट्रेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल विद नो पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, लेकिन रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर द कॉम्प्लेक्सेस. जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है वहां पे आप इसको यूज मत कर लीजिए इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट देयर. समटाइम्स आप निकाल भी सकते हो, समटाइम्स यू कैन नॉट. सो इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इट इज नॉट वैलिड. अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको कैसे निकाल, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले उन मेटलाइंस की, उसके लिए the best thing is that you go to the valence bond theory, and valence bond theory में हमने अपलोड किए हैं lectures about various compounds. वहाँ पे हमने central metal जो है उसका hybridization कैसे निकाला, you can check it there. ठीक है. Now what do you mean by this VMCA/2? V का मतलब जो आपका central metal है उस पे valence electrons कितने हैं, नंबर 1. M stands for आपकी monovalents कितने attached है central metal के साथ. Monovalents means monovalents means like hydrogen atom, like halide ion, they are called as monovalents, जिनकी वैलेंसी 1 है. ठीक है, like hydroxide ion, chloride, they are called monovalents. C means अगर आपका कैटायनिक चार्ज कितना है, और A means एनायनिक चार्ज कितना है. Without wasting time, let us go to the methane molecule. Methane molecule हमें पता है इसकी हाइब्रिडेशन, लेकिन let us apply this formula. Carbon is the central metal, its valence electrons कितनी है, 4.
तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास 4 है, प्लस आप कर लीजिए मोनोवैलेंस हाइड्रोजन 4 है, हो गए 8, कोई चार्ज नहीं, कोई कैटाइन नहीं, डिवाइड बाई 2, तो 8/2 दैट्स योर 4। जब 4 आपका वैल्यू निकल गया तो अब एस से स्टार्ट कर लीजिए, S1, फिर 3 लाइए, पी के 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज P3। sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। आइए अमोनिया पे, सेंट्रल मेटल इज अमोनिया, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम आराम से निकाल सकते हैं 2n² फार्मूला से, या वी कैन यूज द आबो प्रिंसिपल। आबो प्रिंसिपल से भी हमें पता चलेगा कि वैलेंस शेल कौन सी है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। अच्छा, 2n² से भी निकाल सकते हो। तो 5, मोनोवैलेंस 3 है, कोई चार्ज नहीं, इसका वैल्यू भी आपको निकलता है 4, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आइए आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल आपका ये जो एलिमेंट है दैट इज दिस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, मोलवैलेंस 2 है इसमें, सो नो कैटाइन नो एनाइन, दैट इज 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो तीनों मॉलिक्यूल्स वेदर इट्स मीथेन, ammonia and water, the hydrides of these elements, they have the hybridization that's sp3। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेटिव्स पे। दिस इज योर कार्बोएनाइन। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकालें हम? सिंपल है, कार्बन इज योर सेंट्रल, ये जो आपका एटम है दैट्स कार्बन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 4। मोनोवैलेंस अटैच्ड कितने हैं? 3। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस चार्ज है, जब चार्ज माइनस होगा तो उसको हम प्लस करेंगे, +1 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 8/2, तो 8/2 मीन्स 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन पे आ जाते हैं। कार्बोकेटाइन में आपका कार्बन इज योर सेंट्रल मेटल, सॉरी सेंट्रल वाला जो आपका एटम है, इट हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4, मोनोवैलेंस 3 हाइड्रोजन्स, प्लस चार्ज है उसको हम माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2, दैट इज 6/2, दैट इज 3। अब 3 ही निकल गया, तो जो sp3 था इसमें एक p ऑर्बिटल निकाल लीजिए, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द कार्बोकेटाइन sp2। ठीक है, अब आइए अमोनियम आयन पे। अमोनियम आयन की हाइब्रिडेशन को निकालने के लिए लेट अस डू अ बिट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब अमोनियम आयन, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ मोनोवैलेंस 4 अटैच्ड है, एंड देन प्लस कैटाइन 1 प्लस चार्ज है, दैट यू डू -1 डिवाइड बाई 2, so that is your 8/2, so sp3 is the hybridization of nitrogen in the ammonia molecule। तो अमोनिया भी सेम। अब आते हैं एमाइड पे। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंस 2, एक माइनस चार्ज दैट यू विल ऐड, डिवाइड बाई 2, दैट्स 8/2, दैट्स 4, so this is sp3। अब आइए आप हाइड्रोनियम आयन पे। ऑक्सीजन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, मोनोवैलेंट्स कितने हैं? 3, चार्ज 1 प्लस है, दैट विल डू एज द माइनस, डिवाइड बाई 2, सो दैट्स योर 8, दैट्स 8/2, दैट्स 4 sp3। एंड देन यू हैव द हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट्स 1, माइनस चार्ज है तो माइनस को हम प्लस लिखेंगे एज +1 डिवाइड बाई 2, that's 8/2, so this is your sp3। तो इस तरह से within 5 minutes हार्डली शायद हमने स्टार्ट किया था, we could find the hybridization of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 कंपाउंड्स का। दिस इज द वे आउट कि जब भी आपका जो, और इस पोर्शन में तकरीबन एग्जाम इस पोर्शन में एनी एग्जाम में यू विल सी एटलीस्ट ए सिंगल क्वेश्चन। अच्छा, इससे आप और इन्फॉर्मेशन ट्रेस कर सकते हो, दैट इज द ज्योमेट्री एंड शेप, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सीरीज ऑन द नेक्स्ट संडे वी विल बी हैविंग द टॉपिक अबाउट द regular geometry and the actual shape of the molecules, geometry of the molecules, taking this hybridization concept in the mind. So that we'll see in the next class. Hope you have enjoyed today's class and it might have helped you. If still you have the question, you can please post the question. So this is all for the day.